In the end of चलें the सर. class is 5 minutes before. Yes, exactly. Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Abdul Ghaffar Abbasi here to conduct chemistry class. As initially I have told you that in our first class I have give you a brief overview related to the chemistry syllabus of the first term. Then we also discussed about paper 1, paper 2 and paper 4 as well. So first of all, we are not going to discuss the chapter 1 directly, but we will discuss some basic concepts uh, of the chemistry. Then we will move towards the chapters, right? Bismillah Rahman Rahim. So now look at here, beta. These are the contents of this chapter, means the basic concepts. First of all, what is chemistry? Then the importance of chemistry, important branches of chemistry we will discuss. Then what is matter, states of matter. Then we will discuss atom, fundamental particles of atom, then charges, atomic number, atomic mass, atomic weight, nucleon number, then molecular mass, formula mass. Then we will have some calculations related to molecular mass, formula mass, empirical formula. We will discuss molecular formula. Then we will discuss shell, subshell, element, chemical symbol, rules of chemical symbol. Then we will discuss the compound, chemical formula, rules, molecule, chemical reaction, chemical equation, types of chemical equation, then ion, what is ion, cation, anion, and then these are the basic concepts. तो बेटा अगर ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से कर लोगे तो इंशाल्लाह मतलब जो बहुत सारे ये इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आगे के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इवन पीरियोडिक टेबल, तो सारे उन्हीं में से ही है मेन पॉइंट्स. तो अगर ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको आगे के चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे, जल्दी से ही कवर कर लेंगे. ठीक है जी. तो is it okay, any difficulty, any question if you want to ask from these basic concepts, or you want to share any idea? Yes, boys and girls. No. No sir. ओके बेटा, थोड़ा सा ना बोलते जाएं आप लोग, माइक जो है बिल्कुल ही ऑफ नहीं करना है. मैं क्योंकि इन बिटवीन आप लोगों से पूछता जाऊंगा तो आप लोगों ने भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना है. Okay, Ji. Now we are discussing our first topic, that is what is chemistry, because we must know that what is chemistry. So this is the definition of the chemistry, that it is the branch of science, and it deals with the basically it deals with the study of matter, right? This branch deals with the study of matter. But what you will study about matter? You will study the structure of matter, properties of matter, composition of matter and functions of matter. ये सारी बेटा प्रॉपर्टीज आप लोग किस में पढ़ेंगे? सारा केमिस्ट्री के अंदर. और किसकी प्रॉपर्टीज है? मैटर की, राइट? मोर ओवर इट ऑल्सो डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग दीज चेंजेस इन मैटर. जो मैटर में आप लोग चेंजेस करते हैं, करेंगे, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, तो दीज आर दी फिजिकल चेंजेस इन मैटर, राइट? तो जो आप लोग करोगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं. तो वो सारे दे ऑल आर अंडर द हेडिंग ऑफ केमिस्ट्री. कोई भी मैटर है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसके फंक्शंस क्या हैं, this all is about chemistry. Is it okay? Any difficulty Yes sir. in this definition of the chemistry? कोई difficulty है तो पूछ सकते हैं आप लोग. No, no, sir. All right, good. Now we are moving towards the main branches of chemistry. वैसे तो बेटा बहुत सारी branches हैं, but these are three main branches. Number one is organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. आप लोगों को जैसे पता होगा थोड़ा बहुत के पीरियोडिक टेबल में देयर आर मोर देन 120 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी पीरियोडिक टेबल. जो एलिमेंट आपको पता है 6-7 में पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, वी विल डिस्कस. तो एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में मोर देन 120 एलिमेंट्स हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
आप लोग दो एलिमेंट की स्टडी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी होगी दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आप कार्बन और हाइड्रोजन और उसके जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे तो उसको सिंपली हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन की स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी रह गया हमारा नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेस्ट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आप इसमें डिस्कस करोगे इनऑर्गेनिक में। लास्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन ध्यान से, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले भी बताया कि ये दो जो ब्रांचेस हैं जिसमें ये रिएक्शंस आप परफॉर्म करोगे कार्बन हाइड्रोजन के या दूसरे सारे एलिमेंट्स के, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री होगी बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में इन केमिकल रिएक्शन के जो कुछ लॉज होंगे या प्रिंसिपल्स जो होंगे ये सारे आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ने हैं कि ये जो ऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शन करेंगे इनके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा यूज करें, क्या कंडीशंस हो, सेट एनवायरनमेंट किस तरह से सेट करें। तो दिस ऑल विल बी अंडर दिस फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। इन तीनों में किसी को कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछें। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले को थोड़ा रिपीट कीजिएगा। ऑर्गेनिक में बेटा सिर्फ दो एलिमेंट आप पढ़ोगे, दो एलिमेंट के केमिकल रिएक्शंस आप लोग डिस्कस करेंगे। कौन से? नंबर वन इज कार्बन एंड नंबर वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मींस हाइड्रोकार्बन्स, दो एलिमेंट और उसके जो और कंपाउंड बनते जाएंगे इनके, मतलब जो भी कंपाउंड्स होंगे तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन होगा। एक जैसे शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको दूं जो आप बायो के भी हो, C6H6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? कौन बताएगा? C6H12O6 बायो के स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो आपने I was to say, but I forgot. ओके गुड, क्योंकि बेटा आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसका, तो ये तो देखें 6, 7, 8 में मैंने, क्योंकि मुझे आई हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ टीचिंग साइंस एज वेल, तो मैंने साइंस भी पढ़ा है तो उसमें है ये टॉपिक। तो इसमें अगर देखें जो कार्बन और हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसमें देखें कि ये दो एलिमेंट तो हैं लेकिन और भी एलिमेंट हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिंपली। जैसे एक एग्जांपल और मैं बता दूं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो और स्टडी हो जाएगी लेकिन मैं शॉर्ट थोड़ा सा बता दूं। एक फॉर्मूला है CH4, ये क्या है, इसका नाम क्या होता है? ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। CH4 इज, इट इज अ गैस, नाम बताएं इसको। बेटा हम लोग बोलते हैं मीथेन। CH4, यस, इसका नाम है मीथेन गैस। बच्चे ये देखें, ऐसे नहीं करें ना, ये तो आप पढ़ के आए होंगे। तो अब ये देखें, मैं शॉर्ट आ गया है टॉपिक तो बता दूं। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन भी हो और भी एलिमेंट हो लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन दे ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आगे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया? इन तीनों में किसी को अभी भी कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, नो इश्यू, I don't think so. ओके गुड। अच्छा, वन थिंग मोर, अगेन आई एम रिपीटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब मैं ये करवा रहा हूँ, कोशिश करके जितने भी स्टूडेंट हों उनको बोलें, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगा। तो जिसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे कोई भी इंशाल्लाह डिफिकल्टी नहीं होगी उसको।
अगर किसी के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहीं से मिसिंग हो गए फिर आप लोगों को डिफिकल्टी होगी, तो इसको बेटा आप लोगों ने एक बार नहीं बहुत बार आप रिपीट करवा सकते हो। अभी मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या है उस वक्त, तो आप नो इशू आप लोग पूछ सकते हैं। इवन कल अगर हम लोग डिस्कस करें तो आज नेक्स्ट डे प्रीवियस डे की टॉपिक्स भी आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को आने चाहिए सारे। अगर ये आएंगे उसके बाद आप देखें केमिस्ट्री में कितने अच्छे ग्रेड्स आते हैं आप लोगों के। Okay, ji. Now we are moving towards our first topic, that is matter. As we have discussed that chemistry is all about the study of matter. So what is matter? Anything that occupies a space and has volume, that is called matter. So then there are three states of matter, as you know. Number one is solid, liquid and gas. These are three main basically states of matter. Matter की definition तो 6-7 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें स्पेस जो कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करे और वॉल्यूम भी हो, उसको वेट भी हो, मास भी हो, दैट इज कॉल्ड द मैटर। एंड एज यू नो दैट दीज आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। राइट, इज इट ओके? इस स्लाइड में कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग बेटा। No No, sir, no. difficulty, sir. All right, now look at here, this is the diagram of the solid, liquid, gas. Look at here, these are the particles which are arranged in solid object. They are tightly packed with one another. There are no vacant or empty spaces between their particles. There is a orderly arrangement of the molecules. देखें कि एक order है, ये देखें ये इस तरह से distribute किया है, तो ये इस तरह से again same order. तो this is you can say that three-dimensional arrangement of the molecules or regular pattern of the molecules is there. They are tightly packed with one another. But look at the liquid, there is no any order, and there is a small amount of spaces between the liquid particle. And look at gas particles, they are widely separated from one another, and there are lots of spaces between gas particles. Right, so this is the particle model of the solid, liquid, gas. जी बचे जी, पूछना No, है no, किसी? sir. ओके, अच्छा एक और बात, जैसे अगर आप लोग देखो तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं सिलेबस का। अगर आप लोगों को कल सिलेबस लिखवाया था तो उस सिलेबस में ये था टॉपिक हमारा, जी सर। यस, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी था हमारा पहला ही। तो उसमें अगर देखो आप लोग तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग डिस्कस करना था, जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हेन वी स्टार्ट अवर सिलेबस तो बहुत सारी टॉपिक्स ऐसी होंगी जो आप बोलोगे कि सर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, so we will just have a quick review of that topic and then we will move towards the other topics. So in at the end inshallah we will cover the syllabus on time and with basic concepts. Yes, सर जो सिलेबस आपने लिखवाए थे रफ कॉपी पे, सर वो फेयर कॉपी के इंडेक्स में लिख लें हम लोग? हाँ लिख लें बिल्कुल। अच्छा एक और बात, चलें अच्छा हुआ आपने कहा है, तो मैं आपको लोगों को थोड़ी सी एक और इंस्ट्रक्शन बता दूं कि हाउ आई वांट माय कॉपीज। ये मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। आपने ये इंडेक्स एक तो कॉपीज पे बना होता है, लेकिन नहीं है तो रजिस्टर जैसे ले रहे हो तो उसमें नहीं होता, तो आप लोग इंडेक्स लिखोगे। ये मैं बता दूं आप लोगों को ना, आप लोग वैसे तो बनाते होगे, लेकिन हाउ आई वांट माय कॉपीज, फर्स्ट पेज छोड़ देना है आप लोगों ने। सेकंड पेज पे आप सीरियल नंबर इस तरह से देके और यहाँ पे आप लिखोगे टॉपिक, और उसके बाद इधर आप लिखोगे पेरेंट सिग्नेचर, और इधर आप लिखोगे टीचर सिग्नेचर। ठीक है, अच्छा एक और बात बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियल नंबर लिख के नंबर 1 लिखा आपने, तो आप लिखोगे यहाँ पे टॉपिक आप लिखोगे सिलेबस, सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म 2021 लिखते हैं। ठीक है, 2021, ठीक है बेटा। और उसके बाद सेकंड आप लिखोगे सिलेबस के साथ, सेकंड आप लोग लिखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखोगे। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर्स मैंने लिखवाए हैं वो चैप्टर की हेडिंग लाजमी देनी है आपने, वो ब्लैक से लिखें। ठीक है, चैप्टर की हेडिंग, ये जैसे देखें चैप्टर की हेडिंग आ गई, फॉर एग्जांपल इसमें लिख दिया काइनेटिक पार्टिकल, यहाँ उसमें जो जो मेन सब टॉपिक्स आप पढ़ोगे
वो आपने ब्लू से इधर इधर लिखने हैं कि जब मैं मतलब कॉपीज इंशाल्लाह अगर फिजिकल क्लासेस जैसे अल्लाह मालिक के जल्दी से स्टार्ट हो तो मैं जब आप लोगों की कॉपीज देखूं तो वो हाईलाइटेड किया हुआ हो चैप्टर बहुत ही। मैं क्योंकि देखें मैंने आप लोगों को बताया कि मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं तो जो कोऑर्डिनेटर्स आते हैं तो स्पेशली वो केमिस्ट्री की और साइंस जब था तो सबसे टॉप पे वो कॉपीज जाती थी चेक करके मतलब वो अप्रिशिएट करते थे। तो उसमें आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की या जो भी चैप्टर है उसको हाईलाइट करोगे और फिर आप लोग ब्लैक से लिखना है वो, और इंडेक्स जो होगा दूसरी जो सब टॉपिक्स होंगी वो ब्लू से होंगी। तो आपको एक क्लियर नजर आएगा कि अच्छा जी इतने इतने चैप्टर्स हैं उसकी सब टॉपिक्स भी लिखी हैं। तो ये एक इंडेक्स पेज इस तरह से लिखोगे। इंडेक्स पेज में कोई डिफिकल्टी है? नो सर। No, sir. सर तो सिलेबस का फर्स्ट टर्म ये हमें ब्लैक से लिखना है। हाँ ब्लैक से लिख दें, ये ब्लैक से लिखें, जो चैप्टर की सर, हेडिंग सर। होगी वो ब्लैक से लिख दें, ब्लैक से लिख देंगे। अच्छा एक और बात, ये वाला हो गया। उसके बाद आप जो है क्या करना है, इंडेक्स के 2 पेजेस छोड़ने हैं आपने, ठीक है। 2 पेजेस इंडेक्स के छोड़ दिए आपने। तीसरे पेज पे डायरेक्टली आप जाके क्या लिखोगे, तीसरे पेज पे आपने लिखना है सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो आपने समझें कि ये समझें कि राइट नाउ यू आर ऑन दी 3rd पेज। तो 3rd पेज पे अगर बेटा आप लोग देखोगे तो आपने क्या लिखना है, ये आपने लिखना है अच्छा एक और बात कि आपने इसको क्या बोलते हैं, एक पोर्शन जैसे बनाते हैं पेज को, जैसे हम लोग इस तरह से टर्न करके एक क्या बोलते हैं इसको, Triangle. ट्राइंगल, एग्जैक्टली इस तरह से पेज को इस तरह समझ से गए, सब पॉइंटर बनाना है। पॉइंटर बनाना है। वेरी गुड, एग्जैक्टली इस तरह से लिखोगे, ये पॉइंटर बनाओगे पेज का बेटा, और इस पे लिखोगे आप लोग फर्स्ट टर्म। एक पेज पे आपने लिख दिया फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, ये पॉइंटर बन गया आपका। इंडेक्स के 2 पेजेस के बाद आपका ये पॉइंटर बन गया। पॉइंटर बनने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट पेज होगा उस पे आप लोगों ने ऊपर यहाँ पे डेट लिखनी है, डेट वाइज काम करना है, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो आप इस पे लिखोगे बेटा, यहाँ से ब्लैक पेन से लिखोगे सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म, और सिलेबस में से आप जो जो मैंने लिखवाएं वो आप इस तरह से करके लिखते जाओगे जैसे मैंने लिखा है। तो यहाँ से आपका सिलेबस हो गया, मतलब फर्स्ट 2 पेजेस फॉर इंडेक्स, देन 3rd पेज फॉर द यू नो द for the separation of the term, then Pointer. 3rd pointer you can say, and then the syllabus page. आफ्टर दैट ये सिलेबस पेज हो गया बेटा। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे मतलब फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपने लिखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले तो कोशिश करें समझ लें ये जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा जिसके बाद आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसके सुकून से घर पे लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों को समझने हैं और लिखने हैं। इसमें रिटन टेस्ट आपका इंशाल्लाह होगा। बाकी ये है जो आगे जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर स्टार्ट किया उसमें फिर डिफरेंट वे होगा मेरा पढ़ाने का। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा समझा के फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर पास पेपर के कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो फिर आप लोग दैट विल बी यू नो ऑल्सो क्रिएटिव वे, तो वो अलग होगा। बाकी अभी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आई विल प्रोवाइड यू नो ईच एंड एवरीथिंग, नोट्स वगैरह वो आपको एज इट इज अच्छे तरीके से करके लिखने। और अच्छा उसमें आप अपनी अगर क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो तो उससे टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम्स आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हो नेट के थ्रू। तो ये ऐसे करना है। इज इट ओके? ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया? सर इसमें सिलेबस में भी टॉपिक ब्लैक से लिखना है और सब टॉपिक्स ब्लू से लिखना है। ब्लू से लिखना है, एग्जैक्टली बिल्कुल, वो ब्लू से लिखना है। सर वन मोर थिंग, यस सर चैट बॉक्स में मैंने बुक की कवर पेज भेजी है, तो आप बता दें ये वही वाली बुक है? एक मिनट बच्चे, अभी मैं देख लेता हूँ। अभी मैं देख, एक मुझे पता नहीं किसने स्टूडेंट ने भेजी थी, तो मैंने उनको कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, अभी चैट विंडो पे भेजी है बच्चे। आप कौन सी क्लास में हो? 90। 90, क्योंकि मैंने भी तो 90 ज्वाइन किया है। चैट विंडो पे नहीं शो हो रहा। मीटिंग चैट चैनल पे भेजा है, मीटिंग चैट पे भेजा है? सर चैनल पे भेजा है केमिस्ट्री के। एक मिनट बच्चे, मैं अभी चैनल पे देख लेता हूँ।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली यही है। ये देखें सेकंड एडिशन है, ये देखें सेकंड एडिशन केमिस्ट्री मैटर्स, सेम यही बुक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। ये आप लोगों ने जो उस दिन ये राइटर वगैरह पूछ रहे थे, तो ये हैं राइटर टेन येन टून, जो आपको पता है चाइनीज के नाम इस तरह से आते हैं, यही दिस इज दी बुक, ये बिल्कुल ओके यही बुक। ठीक है बेटा। सर, जस्ट यही बुक है ना, या और कोई भी दूसरी बुक भी तो नहीं है? नहीं बस यही बुक है। आपने ये मैंने कल भी जैसे बताया था, आई हैव लॉट्स ऑफ अदर बुक्स, तो उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा खुद ही। और इंशाल्लाह अगर सर फिजिकल रेफरेंस क्लासेस जिस, जी बेटा। प्रोवाइड कर दीजिएगा। वाले से बेटा एक कोई बोले ना, आवाज नहीं आई मुझे समझ में। जाओ चार्जिंग पे लगाओ जाओ। जी बेटा वो क्या बोल रहे थे आप लोग? सर मैं कह रहा था कि रेफरेंस के हवाले से कोई बुक अगर आप हमें रेफर करें या सजेस्ट हाँ कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है। रेफरेंस के बुक्स पे उस पे मैं बता दूं आप लोगों को, एक केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री अ कोर्स फॉर ओ लेवल, थर्ड एडिशन है, ग्रीन कलर की बुक है, बहुत अच्छी है। ये मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। और बहुत सारी बुक्स हैं, मैं सर तो इसीलिए ये दोनों बाय करें? नहीं करनी बाय आपने यही है एक सिर्फ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे पास बहुत सारी सॉफ्ट में भी हैं, हार्ड में भी हैं, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं ओके खुद ही सर, आप लोगों को। थैंक हाँ यू। आप लोगों के पास बेटा बस एक ही हो, और बेफिक्र हो जाए आप लोग, पास पेपर्स हर हिसाब से सारी प्रिपरेशन आपको, वो मेरा काम है किस तरह से करवाना। आपके पास बस ओनली यू पीपल हैव दिस केमिस्ट्री मैटर सेकंड एडिशन। ठीक है ओके सर, थैंक यू। चलें गुड है। अच्छा बच्चे अभी जो है ना एक काम करें कि अभी हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट हैं, इनका स्क्रीनशॉट निकाल के तो कोई भेजे सिर्फ अटेंडेंस का। ठीक है Excuse me, sir. I've sent it to you. ओके चलें बेटा गुड है, फिर यही थे ना सारे। I've sent it to you for the yesterday's one as well and today as well. ओके बेटा ओके थैंक यू। Okay, now look at here. We were on this page. We have discussed this solid, liquid, and gas. Now, what the points which you people have to, understand. बेटा माइक ऑफ कर दें, थोड़ा सा आवाज आ रहा है बहुत। ओके अच्छा बेटा अब ये देखें सॉलिड में क्या पॉइंट्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। नाउ लुक एट हियर, सॉलिड हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, right? Why they have definite volume and definite shape? Because look at here, their particles are regularly arranged in a regular pattern, they are tightly packed with one another, there is no spaces, so that is the reason this solid has two main properties, that one is definite volume and definite shape, right? Now what about other points which you will must know, that is particles are very tightly packed in solids, they there are no vacant spaces between their particles, they cannot be compressed when you apply the pressure, जब आप solid पे over pressure apply करेंगे तो they cannot be compressed, their particles can not move but they can vibrate। आप उनके particles अगर solid के देखें तो वो move नहीं करते but वो vibrate करते हैं। एक ये याद रख लेना है कि सॉलिड में जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज, तो you can say that they will vibrate, there is a vibration we can say that in solids, but they cannot move, their particles cannot move। ठीक है जैसे लिक्विड को अगर आप मतलब कहीं से किसी भी कंटेनर से नीचे गिराएंगे फ्लोर पे तो इट विल फ्लो, इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द दैट कंटेनर और एनीथिंग एल्स, लेकिन सॉलिड जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है बेटा इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो स्टोन, चेयर है, बुक है, जरूरी नहीं है आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। ठीक है तो दिस इज अबाउट द सॉलिड
and now we will move towards the liquid. Liquid has definite volume but no definite shape. Liquid में definite volume है लेकिन definite shape नहीं है. जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे, अगर इस तरह से कोई कंटेनर है तो ये वाली शेप होगी. अगर आप जो है इस तरह से कोई कंटेनर है बहुत बड़ा, तो उसकी शेप भी इस तरह से हो जाएगी. तो जिस तरह से जो शेप होगी कंटेनर की, लिक्विड विल अटेन दैट शेप. लिक्विड हैज नॉट इट्स ओन द शेप. ठीक है, तो look at here, it attains the shape of the container. Particles are not tightly packed in liquids. There are some vacant spaces between the particles. They can be compressed to some extent. To some extent आप उनको कुछ जो है कंप्रेस कर सकते हो लिक्विड को, क्योंकि जितनी थोड़ी बहुत स्पेसेस हैं तो उनमें आप अप्लाई करके प्रेशर और कर सकते हैं. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज आई हैव mentioned here, that solid can vibrate. What about liquid? Their particles can move, and their movement Yes, they can move as well and they can vibrate. no beta, liquid cannot vibrate. Liquid, Oh, sorry. Yes, they can move. yes, they can move only, and when they can move, that term is especially that is called diffusion. और 9th क्लास में बेटा याद रख लें, एक डिफ्यूजन जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भी, उस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं पास पेपर्स में, इतने क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो द व्हाट इज द मूवमेंट when we are talking about liquids, so that movement is called diffusion. And these are the examples of the liquid like water, milk, oil, or anything else. Last but not the least, that is gas. Gas has no definite volume, no definite shape. ना इसकी definite volume होता है negligible volume होता है, और ना ही इसकी कोई definite shape होती है. It attains the shape of the container, right? Particles are widely separated in gas molecules. There are many vacant spaces present between their particles. They can be compressed easily. सबसे ज्यादा एक आता है ऑब्जेक्टिव में कि they will give the options like solid, liquid and gas, and then they will ask the question that which one of the following can be compressed easily, more easily. तो आप क्या आंसर टिक करोगे उसमें? गैस पार्टिकल्स, एग्जैक्टली. तो गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं. नाउ लुक एट हियर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द पार्टिकल्स कैन मूव and their movement is also called as diffusion. तो solid में vibration, liquid में और gas में diffusion. These are different example of the gases like oxygen, nitrogen, hydrogen, fluorine, chlorine, bromine. These are the different types. Now if you people have any difficulty in solid, liquid and gas, so you can ask. No sir, they were very much easy to understand. Okay beta, good hai, well done. Now the very important topic, we are moving towards another topic, that is atom. Old concept related to atom. Atom जो है उसका old पुराना concept क्या था? This was made up of two main parts. Number one, A means not, plus atom means divisible. इसके वर्ड से ही, मीनिंग से इससे ही पता चल रहा है कि वो ऐसा एटम उसको कहेंगे जो डिविजिबल ना हो, फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकें. तो look at here, this is the definition, that atom is the smallest particle of matter. smallest है, final superlative degree है, अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इससे ज्यादा और कोई डिग्री नहीं है, तो इसको और ज्यादा फर्दर आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते. तो I have written here, it cannot be divided into simpler units. इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो दिस होल दी ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, कि भाई मैटर का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. जी बोलें. ओल्ड कॉन्सेप्ट 7th क्लास में आया था ये सर. अच्छा, गुड. देखें ना, इसीलिए मैंने बेटा देखें कि क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 8 क्लास में है ही नहीं, तो इस वजह से बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है. और बेड लक यही है कि मुझे 9th में केमिस्ट्री नहीं मिलती. आई टीच टू 10 and 11 स्पेशली क्लास. तो जब बच्चे 10 में आते हैं तो उनको 9th का ही नहीं पता होता. 9th में भी बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं. 9th में इसलिए नहीं क्योंकि 8 का जो है वो एक गैप था. तो इस वजह से मैंने सर को भी कहा था काफी कि सर मुझे 9th लाजमी दें. तो वो क्योंकि एक और टीचर की भी अटैचमेंट हो जाती है ना स्टूडेंट्स के साथ. पहले तो देखें, स्टूडेंट और टीचर की तो केमिस्ट्री मैच हो, आइडिया तो हो, अंडरस्टैंड. लास्ट ईयर ये असफंद वालों की जो क्लास थी, जिसके सबसे ज्यादा बहुत
अच्छे रिजल्ट आए थे मुस्कान वालों के, इनके असफंद वालों की क्लास के। तो इनको मैंने 9th से पढ़ाया था, 9th से पढ़ाया था, 10th में भी 11 में भी। तो मुझे सारा पता था कि भाई किस तरह से कवर करना है या क्या। तो दिस वाज द मेन रीजन। ओके जी, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये हो गया, डन है। नाउ व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट? ये भी बहुत ओल्ड ही हो गया है काफी, लेकिन उससे ओल्ड से मॉडर्न है कि अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सिंपलर यूनिट्स। उसको डिवाइड कर सकते हैं। And so which are the units? Yes, now we are discussing these are the fundamental units or particles of atoms. बहुत सारे बेटा और भी particles हैं atoms के, atom के सॉरी, जो हैं, लेकिन fundamental हमारे पास सिर्फ 3 हैं जो बहुत important हैं। Atom can be divided into 3 fundamental particles: electron, proton and neutron. अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक और सबसे ज्यादा, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसी तरह से नहीं, मतलब अगर आप लोग देखोगे तो और आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये इसी तरह से रेंडमली मैंने नहीं सिलेक्ट किए, ये सीक्वेंस वाइज हैं। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे आपको वो जैसे होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें आती हैं कि भाई अगर आप कहीं सेकंड बिल्डिंग फ्लोर पे जाना चाह रहे हो तो आप किस तरह से जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी इंटर रिलेटेड हैं। अब ये देखें, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो कोई और है वो कोई और है। सारे टॉपिक्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे से बहुत बार सोच के मिलके, जैसे एक होता है ना चेन बाय चेन कोहेरेंस जो होती है, इस तरह से मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर दी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बच्चे बस आखिरी मिनट है, ये खत्म होने वाला है। तो फिर जो है मैं कल इंशाल्लाह आपके साथ और आगे डिस्कस करूंगा। तो ये देखें, दीज आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन Okay, की sir. क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, प्रोटॉन की क्या है प्रॉपर्टीज, और न्यूट्रॉन की, ये दीज वी विल डिस्कस इन टुमारो, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है Sir, बेटा? no copyright today. नो, कॉपी वर्क यही है बेटा कि कॉपी वर्क में आपने ये सारी चीजें करके दिखानी है। तो आप लोगों को कोई अगर डिफिकल्टी हो या अगर आप लोगों को कोई कॉपी वर्क, तो यही है जो मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आप जिसने ले लिए हैं तो वो Screenshot ग्रुप में करके सेंड करे। भेजिएगा। हाँ, या अगर नहीं लिए किसी तो ने तो मैं आप लोग, लाइन से करें सारा काम, जी बच्चे, लाइन से हम सारा काम करेंगे। अब इट्स अप टू यू। अगर आप इसमें कोई अपनी क्रिएटिविटी करके, जैसे मैंने आपको कहा कि डायग्राम्स बना दें या कोई जिस तरह से आपको लगे, अगर आप इसको और अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो तो इट्स अप टू यू, नो इशू। सर अगर आप एक दफा हमें शुरू से स्लाइड्स दिखा दें तो हम स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, मैं अभी दिखा देता हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख लें या नहीं लिखेंगे आप, जैसे देखें। सर बस व्हाट इज केमिस्ट्री से आगे से शुरू Sir, करते can हैं we जहाँ leave से the class? जी बेटा, Can we leave the class? जी भले, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ग्रुप लेके और फिर ग्रुप में सेंड कर दें। ये केमिस्ट्री का हो गया। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, नेक्स्ट सर। एंड देन मैटर, सर एक मिनट पीछे कीजिएगा, एक मिनट पीछे कीजिएगा सर, फर्स्ट पेज। ये वाला केमिस्ट्री, जी आगे करें, मेन ब्रांचेस और आगे। and matter. ओके सर नेक्स्ट। This is the diagram, and then solid, liquid, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट gas, atom, fundamental particles। यहाँ तक कर लें बस। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।